in this meet. Secondly, you are supposed to do all the properties of group number 1, group number 2, group number 7, and group number 8. All right, and you have means I am telling you the topics which you have to prepare for your test. You are not supposed to do the Rutherford experiment because we haven't done it in class. Who is Mohammed Irfan? Okay. Okay, so you are not supposed to do that Rutherford experiment. I didn't share. Yes, I didn't share the trends of group 2, but I have shared the properties with you. We have discussed the properties in detail in during the Yes. lessons. Almost the properties of group 1 and group 2, they are the same. That's why I didn't give you the trends in group number 2. So it's almost the same. So अगर आप ग्रुप नंबर 1 की प्रॉपर्टीज याद कर लेते हैं तो ग्रुप 2 की प्रॉपर्टीज भी वही हैं. So 1, 7 and 8 ये आपको याद करने हैं. Secondly, you should know that what's a period. You should know what's a group. You should know what's a period and you should know what is a group. All right, periods are horizontal rows and groups are vertical columns. All right, and then you are supposed to do the atomic structures of all of these. Then electronic configuration. Now let me explain this thing, that what is electronic configuration. Electronic configuration is this, that how many electrons are present in each shell of that specific atom. All right, for example, if it is shell number L or shell number 1, from the inside it's K, it's shell number K. K L M N होता है ना, ये 4 shells होते हैं हमारे पास maximum. So K can hold up to 2 electrons, L can hold up to 8 electrons, M can hold up to 16 electrons. Girls, I am repeating, not 18, 16 electrons, and M can hold up to 32 electrons. Am I clear? Yes, ma'am. N can hold up to 16 electrons, and N can hold up to 32 electrons. Now let me explain this to you. I am creating a jam. I hope that you understand it from there. I've invited you to the Jamboard. Please join this Jamboard. Can you, is it visible to everyone? Let me present my screen. All right. So actually, now can you see my screen? Yes. Okay. Now if I'm going to draw a circle. This is the central part, which is the nucleus. All right. This is the nucleus. Now let me type in it. This one is the nucleus over here. Okay, in the center. This one. Okay. थोड़ा सा highlight भी कर देते हैं. This one is the nucleus. All right. Then we will. Now I am going to draw the shells. This is the very first shell which is around your nucleus. All right.
पीछे वाले के ऊपर हो गया. Let's send it backwards. Send backward. Sorry, something is happening over here. I don't know what it is. Okay, bring forward or bring to front, send backward, send to back. Let's check out. Yes, now it's fine. Now this is the very first shell. Can all of you see it? अब फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. वन इज ओवर हेयर or maybe like that. One is over here and the other one is over here. Everyone is able to see my screen? Yes, ma'am. All right. Now I'm going to draw up another shell. This is K shell. Okay, that one is K. Now I'm going to draw, this is L. This one. This is L. L is going to have how many electrons? 8. 8. Yes. This is going to have around 8 electrons. I pardon my writing. Now, अब ये ड्रॉ मैंने क्यों किए हैं? ये मैंने ड्रॉ इसलिए किए हैं ताकि मैं आपको इसके बाहर वाले शेल्स का थोड़ा सा एक आइडिया दे सकूं. अब इसके बाहर होते हैं 2 शेल्स और. Okay, this is this large one, which is the huge one. This is M shell, and let me draw another. This one right here, this is the N shell. M and N. ठीक है. अब ये जो 2 बाहर वाले शेल्स हैं, this one and this one, इन दोनों में मैंने आपको कहा है कि इस वाले शेल में इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. सॉरी, 16 आ सकते हैं. ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं. अब इस शेल के अंदर सब शेल्स हैं. जैसे कि सब शेल कैसे होंगे कि इसके अंदर इस जगह पर एक शेल होगा. ओह माय गॉड, दैट इज अ डिजास्टर. ओके, 16 इलेक्ट्रॉन्स here. Now इसके अंदर सब शेल बनाते हैं. Let me draw the subshells here. इसमें सब शेल होगा just like this, for example. अब मैंने इसमें 16 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. It means that it has, इसके जो सब शेल्स होते हैं ना, they are somewhat like this. So it's sent to back. ठीक है, ये बहुत ही बैक में चला गया. Bring forward. ठीक है, इस तरीके से सब शेल्स होते हैं इस वाले शेल में. ये अभी मैं M बना रही हूँ. इसी तरीके से एक और होगा. ठीक है, टेढ़े मेढ़े, just like that. Okay, so these are the subshells which are present in M. अब एक सबशेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे सबशेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ये सबशेल्स इस तरीके से यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ. These are the subshells of the basic shell which is N. ठीक है, M में 2 सबशेल्स हैं just like that. अब इस एक सबशेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में भी 8 हैं, इस वाले में भी 8 आएंगे, इस वाले में भी 8 आएंगे. 8 and 8 16. So that is how these 16 electrons are adjusted in this shell. अब क्योंकि ये इतने twisted and turned हैं कि we cannot like represent it over here. That's why हम एक ही बड़ा सा शेल बना के ऊपर 16 लिख देते हैं.
लेकिन इसमें जब तक एक सब शेल मुकम्मल ना हो, ये दोनों सब शेल्स जब तक मुकम्मल ना हो, एन शेल नहीं बनता। समझ आ रही है बात मेरी सबको? Yes. ठीक है। अब अगर ये एम शेल है, इसमें 16 ऐसे हैं, 8 ऐसे हैं, 8 ऐसे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये करते होते हैं कि हम सिर्फ सेंट्रल एक शो करते हैं, सेंट्रल शेल। इसके बाद ये इस सेंटर के बाद एक और सब शेल हम शो करते हैं ऐसे, जो समवट लाइक दिस एंड टू बैक। ठीक है, ये फर्स्ट शेल हो गया, के शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये एल शेल है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, देन दिस वन इज एम, it can hold up to, it has subshells which can hold up to 16 electrons. बट ओवरऑल जब हम इस तरीके की डायग्राम बनाएंगे, तो क्योंकि हम सब शेल्स नहीं बना रहे, ठीक है, दैट्स वाई हम इस डायग्राम में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। ठीक है, सब शेल इसके अंदर करके सब शेल्स उस तरह नहीं बनाते जैसे मैंने यहाँ पे बनाएंगे। सब शेल्स एक्चुअली इस तरीके से होते हैं, एक शेल के अंदर। ठीक है, मतलब शेल इज जस्ट लाइक अ बाउंड्री, उस बाउंड्री के अंदर छोटी छोटी और पाथ्स हैं। ठीक है, एक बड़ी बाउंड्री है, बड़ी बाउंड्री के अंदर छोटे छोटे पाथ्स और बन जाते हैं, जहाँ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। सब शेल्स इस चीज को कहते हैं। अब जो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल है, विच इज द एन शेल, इट इज गोइंग टू हैव 4 सब शेल्स। ठीक है, ये भी मैं बना के दिखाती हूँ। अब यहाँ पे ये आपके पास हो गया एन शेल। आप ऑर्डर में जब इस तरीके से जब आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे एटम का, तो आप यहाँ पे सब शेल्स शो नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन्स 8 ही शो करने हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यू आर गोइंग टू शो ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें 16 ही, लेकिन 16 दो अलग अलग सब शेल्स के अंदर है। इसके साथ साथ अब यहाँ पे अगर हम ये वाला बनाएं, क्या कहते हैं, ग्रुप, ये एन शेल, एन शेल जो है, एन MnOP, सॉरी KLMN, एन शेल इस तरीके से होगा। एन हैज 4 सब शेल्स। ठीक है, एन के 4 सब शेल्स हैं। जैसे एन के हमारे पास कितने सब शेल्स थे? 2 थे। ठीक है, एन के हमारे पास सब शेल्स 2 थे, एम के हमारे पास सब शेल्स 4 है। ऑलराइट, जस्ट लाइक दैट। अब ये 3 हो गए हैं, 1 2 3, 1 is left. All right. एक यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, इस तरीके का शेल होगा जो आखिरी सबसे बाहर वाला शेल है। अब इन सारे ये सब शेल्स हैं, इसको आप एक ही, यहाँ पे जब हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हमने सिर्फ एक सर्कल के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है इस तरह से। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है शेल, इन सब शेल्स को एक ही के अंदर हम ओवरऑल एक ही बना देते हैं, और हम उसमें ये लिख देते हैं कि इट कंटेन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन बेसिकली इट कंटेन्स 4 सब शेल्स, 1 2 3 4, इसमें 4 सब शेल्स हैं, एंड ईच सब शेल इज गोइंग टू हैव 8 electrons, 8 in this, 8 in this, 8 in this, and 8 in this one. समझ आई है अब इस चीज की, कैसे एक शेल में सब शेल्स हो सकते हैं? गर्ल्स,
Yes. ऑलराइट, नाउ अब ये बात बताने का मकसद ये था कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू represent only 8 electrons per shell. All right, now let's have a discussion on, I'm really sorry about that, let's have a discussion on trends in periodic table. I'm again going to present my entire screen. I'm closing that. All right, so trends in group 1, trends in group 2, and trends in group 3. Now all the elements which you need to memorize, I have told you all those elements. You should know their you should not know their melting points and boiling points, but you should know the trends going on in alkali metals and in halogens and in noble gases. Now these are all alkali metals. You should know the names of the groups. Group 1 is alkali metals, group 2 is alkaline earth metals. Then in the center you have huge numbers, which is of transition elements. And then on the right hand side of the periodic table you have non-metals, on the left hand side you have metals. All right, and in then as you go towards the right side, then over there the group number 7, it is named as halogens. Then group number 8, it is named as noble gases. Who's that? Who is Amanat Iqbal? Don't know. Deny entry. All right, so lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, these are all the elements which are present in group number 1, and group number 1 elements are all alkali metals. अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, outer level electrons. The term, this term outer level electrons, you can also say valence electrons. Outer level electrons means that these are electrons which are present in the outermost shell. So it means that valence electrons are those electrons which are present in the outermost shell. Are you getting me what I'm trying to say? जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले शेल में होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. ठीक है, वाई उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दोज आर द ओनली इलेक्ट्रॉन्स विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलरेडी फुल हैं, शेल्स कंप्लीटेड हैं, उन्हें किसी केमिकल रिएक्शन के हिस्सा बनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. सिर्फ जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये डिटर्मिन करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करेंगी किसी एलिमेंट की. अच्छा, अब इसमें 3 चीजें जो नोट करने वाली हैं. नंबर 1, द प्रोटॉन्स. The protons are positively charged particles, and these particles actually help you identify the element. For example, if lithium's proton number is 3, then this means that apart from lithium, there is no other element which has proton number of 3. ठीक है, सिर्फ लिथियम का ही प्रोटॉन नंबर 3 है. तो प्रोटॉन नंबर या जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एक एलिमेंट में, दे टेल अस दैट व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट एलिमेंट. द आइडेंटिफिकेशन इज गिवन बाय द प्रोटॉन नंबर. सेकंड पॉइंट, न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स being more or being less, it doesn't matter because it doesn't affect the identity of the atom. It only affects the mass. So by protons you determine the identity of the atom, by neutrons you determine the mass of the atom. Okay, and then by electrons you determine the chemical properties which the atom is going to demonstrate. ठीक है, ये 3 चीजें हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन ये बताते हैं कि कौन सा एलिमेंट है, न्यूट्रॉन्स ये बताते हैं कि क्या वेट है एलिमेंट का, वजन कितना है, मास कितना है.
और इलेक्ट्रॉन हमें ये बताते हैं कि इस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। अब जैसे कि और जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल, आई एम अगेन टेलिंग यू, ये मैं पेपर में दूंगी इसलिए बता रही हूँ कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि ग्रुप नंबर क्या है। अब ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, all of these elements have different proton numbers, but the number of electron which is going to present in their outermost shell is going to be 1. Similarly, the electrons present in group 2, the elements present in group number 2 will have 2 electrons in its outermost shell. Means it is going to have 2 valence electrons. If it is group number 3, then group 3 elements have 3 valence electrons. If it is group 4, then group 4 has 4 valence electrons. If it is group 5 has 5 valence electrons. Similarly, if it is group 6, it is going to have all the elements which are present in group number 6. इसमें valence electrons group 6 होंगे. Valence electrons are the electrons present in the outermost shell. ग्रुप 7 में 7 outermost shell में electrons होंगे और ग्रुप 8 में 8 होंगे outermost shell में electron. ठीक है, ये जो outermost shell के electrons हैं, ये हमें केमिकल की, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बताते हैं. नाउ द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 1, दे आर हाईली रिएक्टिव टू वेरी रिएक्टिव. ठीक है, दे आर वेरी रिएक्टिव एंड हाईली रिएक्टिव. दे आर सॉफ्ट, दे आर सिल्वर, दे आर शाइनी, दे आर ग्लो डेंसिटी. ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. एल्कली मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं वो ये लिखी हुई हैं. ठीक है जी. इसके बाद you don't need to know these equations, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है. Patterns in periodic table. Now this slide is important. As you go down in group number 1 and 2, the reactivity of the element it increases. मतलब इसका ये है कि लिथियम कम रिएक्टिव है, सोडियम लिथियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम सोडियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, रुबिडियम पोटेशियम से भी ज्यादा रिएक्टिव है, सीजियम रुबिडियम से भी ज्यादा रिएक्टिव है और फ्रेंसियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है. सिमिलरली सेकंड पैटर्न, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. दिस मीन्स दैट francium is going to have the least melting and boiling point and lithium is going to have the most melting and boiling point. All right, lithium's melting and boiling point is going to be the largest and francium's melting and boiling point is going to be the lowest. Then number 3, size of the atom increases as you go down the group. ये सिर्फ इस ग्रुप में नहीं है, ये सब ग्रुप्स में है. जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं, उसके अंदर एक एक शेल ऐड होता जाता है और साइज ऑफ एटम बढ़ता जाता है. ठीक है जी. Then now let's discuss about group number. The next group. That is group number 7. Now group number 7, these are known as halogens. You should know the properties of metals, non-metals, transition metals, halogens, noble gases, alkali metals and alkaline earth metals. I'm telling you before. Now halogens are fluorine, chlorine, bromine, iodine and astenine. Fluorine and chlorine are gases. Bromine is a liquid. Iodine and astenine, these both are solids. These are in solid form in the periodic table, naturally in Earth. All right. Usually, all the elements which are present in group number 7, they form a bond with group number 1 elements, and they become a stable structure. Now, let's find out the patterns which are in group number 7. अब मैंने आपको ग्रुप नंबर 1 में ये बताया है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी.
ग्रुप नंबर 1 में फ्रेंशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा थी, लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे कम थी, लेकिन ग्रुप नंबर 7 में फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, एस्टेनिन की रिएक्टिविटी सबसे कम है। यहाँ रिएक्टिविटी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, वहां ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, एस्टेनिन ऑन द अदर हैंड इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, and the size of the atom it increases as you go down the group. Now the halogens want to grab an electron in order to fulfill their capacity, in order to fulfill their valency, they need to grab an electron from another element. अच्छा हाँ जी, ये चीज भी डिस्कस कर लेते हैं। You are not supposed to do isotopes. Isotopes करने की कोई ज़रूरत नहीं है, but ions are included in your syllabus. Ion कब बनता है? Ion एटम जब चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट होता है तो उस चार्ज पार्टिकल को हम आयन कहते हैं, ठीक है। अब एटम चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट क्यों होगा? पहली बात कि इसमें सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व है चार्जिंग में, बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग पढ़ी है ना आपने? बॉन्डिंग जब होती है इलेक्ट्रॉन्स की तब इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज पैदा होता है, जब मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं तब चार्ज पैदा होता है। चार्ज क्यों पैदा होता है? चार्ज पैदा इसलिए होता है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव फ्लोरीन या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन, इनमें से किसी की भी कोई एग्जाम्पल ले लो। इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए ना, लेकिन इसमें 7 है। जब तक तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ठीक है। अब क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर है 17, ठीक है। 17 क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर है। क्लोरीन को एग्जांपल लेके चलते हैं। क्लोरीन प्रोटॉन नंबर इज 17. इट मींस क्लोरीन हैज 17 प्रोटॉन्स and has 17 electrons in total. In total, अभी मैं आउटर मोस्ट शेल की बात नहीं कर रही। अब क्या होगा कि जब क्लोरीन सोडियम के साथ बॉन्डिंग करेगी तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन बोरो कर लेगी क्लोरीन, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से बोरो कर लेगी, इसके अपने पास से 17 इलेक्ट्रॉन्स, इसने एक बोरो कर लिया, इलेक्ट्रॉन हो गए 18। प्रोटॉन ऑन द अदर हैंड कितने हैं? प्रोटॉन थे 17। अब 17 प्रोटॉन है इसमें। जब सोडियम क्लोराइड बन गया है तो सोडियम क्लोराइड में जो क्लोरीन है, क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन के अंदर 17 प्रोटॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है उस आयन में। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा। दैट इज वाई अब हम इसके ऊपर एक नेगेटिव का साइन लगा देंगे, -1। -1 का मतलब है -1 मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा हो गया प्रोटॉन से, ठीक है। सिमिलरली जब सोडियम इलेक्ट्रॉन अपना एक क्लोरीन को दे देगा, उसके सोडियम का प्रोटॉन नंबर क्या है? 11, ठीक है। 11 है सोडियम का प्रोटॉन नंबर। जब उसने अपना एक आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, अब उसका प्रोटॉन नंबर कितना है? 11। और उसके इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं? 10। उसके अपने जो शेयर कर लिए इन्होंने वो अलग हैं, वो सारे पे ही रोटेट कर रहे हैं, लेकिन जेन्युइनली उसके अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया है सोडियम ने, जो क्लोरीन पे भी है, जो सोडियम पे भी है। दैट इज वाई सोडियम के ऊपर अब टोटली सोडियम के अपनी एग्जिस्टेंस में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 11 प्रोटॉन्स। इस वजह से उस पर जो चार्ज आएगा वो +1 होगा। +1 का मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। सिमिलरली अगर +2 कर दें हम तो इट मीन्स उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। +3 कर दें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इज इट क्लियर?
गर्ल्स, इज इट क्लियर? नहीं आई कुछ समझ तो पूछ लो, क्या हो गया? Yes, ma'am. यस क्या? Yes, ma'am. बताइए। अच्छा, okay, now let's discuss the last group, which is trends in group number 8. And group number 8 जो है, it is noble gases. Now noble gases are no called noble gases because इनके outermost shell में 8 electrons होते हैं. इनका outermost shell complete होता है. क्योंकि इनका outermost shell complete होता है, इसमें कोई free electron नहीं होता. That is why they are not reactive at all. They do not form molecules. They do not bond with any other atom. Even they do not bond with themselves. जैसे हाइड्रोजन अपने ही साथ एक बॉन्ड बना के और H2 बन जाता है, ऑक्सीजन अपने ही साथ एक बॉन्ड बना के O2 बन जाता है, इस तरह से HE2 नहीं हो सकता. He इज हीलियम, वो अलग ही रहेगा. ठीक है, ये एटोनमस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं ये सारी गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, radon. These are all the noble gases, and these are very first thing that these are all gases. Okay, and all of these gases are present in atomic form. एटम की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं. ये गैसेस मॉलिक्यूल्स नहीं बनाती. ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज, ये रिएक्टिव है ही नहीं. दैट्स वाई हम इन्हें डेजिग्नेट नहीं कर सकते कि इसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, कम रिएक्टिव कौन सा है. ठीक है जी. इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट इस तरीके से हैं कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं, ऑल ऑफ द नोबल गैसेस, दे आर फ्लोरेसेंट. एवरी नोबल गैस हैज अ स्पेसिफिक कलर which it release, which it glows in. Every noble gas can glow in the dark. ठीक है, रात को ये ग्लो करती हैं. सो हीलियम और इन सब का वेट जो है वो लेस होता है. हीलियम इज लेस डेंस देन एयर. हीलियम की डेंसिटी एयर से कम है. नियॉन इज यूज्ड इन लाइट्स, बोर्ड्स, एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स में ये यूज होती हैं. एवरी गैस, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, all of these gases have different colors when they glow in the dark. Okay, and they are inert. Inert means that they are not reactive at all. Why are they not reactive? Because they do not have any free electrons to donate. That's why these gases are not reactive. ठीक है गर्ल्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये आपने याद करना है. इसके अलावा जो आपको मैंने वो दिया था, क्या कहते हैं, जितने मैंने आपको एलिमेंट्स के नेम्स दिए हैं, वो आपने सारे एलिमेंट्स के नेम्स, उनके केमिकल सिंबल्स और उनका प्रोटॉन नंबर, मास नंबर, ये सब कुछ याद करना है. हाँ, एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि how can you calculate the number of neutrons in